السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بچے اور آپ کے گھر والے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ یہ کلاس 6 چھٹی جماعت کی کتاب ہے، تو یہ سبق نمبر 9 جو کل ہم نے پڑھا، تاج محل۔ تاج محل کے بارے میں ویسے آپ کو کچھ معلومات پہلے بھی ہوگی، اور باقی آپ کے پاس کتاب بھی موجود ہے، آپ اس میں بھی یہ سبق خود سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسے 2-3 بار پڑھ کے یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب آج اس کے جو ایکسرسائز یعنی جو سوالات ہیں، تو آج ان کی باری ہے۔ تو آج ہم اس کے سوالات کے جواب لکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر انہیں اپنے کاپیوں پہ اتاریں گے اور ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، حالانکہ اس کے سوالات قدر آسان ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، تو یہاں اگر آپ لوگ غور کریں، تھوڑا سا دھیان دیں، تو یہ آپ آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو یہ سوال نمبر کلاس 6 اردو، تو چیپٹر نمبر ہے، یہ لیسن نمبر 9، تاج محل۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب، تو سوال نمبر 1 ہے کہ تاج محل کس کی یاد میں بنایا گیا؟ تاج محل جو کہ ایک خوبصورت عمارت ہے، یہ کس کی یاد میں بنایا گیا ہے؟ تو تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا۔ اب سوال نمبر 2 کا جواب، سوال نمبر 2 ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ تاج محل کہاں پر واقع ہے؟ تاج محل کہاں واقع ہے؟ تاج محل آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے
वाक़या है। अब सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 3 इस तरह से है कि ताजमहल कब ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ताजमहल, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ताजमहल जो कि सफ़ेद संगे मरमर से बनी हुई एक खूबसूरत इमारत है, तो चूँकि इसका रंग जब सफ़ेद है तो चांदनी रात में इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। यानी चांदनी रात के अंदर ताजमहल को देखना, तब ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसका जवाब यही है कि चांदनी रात के अंदर ताजमहल, यानी रात के दौरान जब चांद खिला हो तो ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ताजमहल चांदनी रात में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 4 इस तरह है कि ताजमहल किस पत्थर से बनाया गया है। ताजमहल किस पत्थर से बनाया गया है। तो इसका जवाब है कि ताजमहल सफ़ेद संगे मरमर, संग पत्थर को कहते हैं, मरमर एक किस्म है, यानी सफ़ेद मार्बल जो यहाँ पर भी निकलते हैं। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। यहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जैसे बातरगाम में है, जैसे हिड़ी में थी। तो बातरगाम की फैक्ट्री अमूमन आप लोगों को ने देखी होगी, क्योंकि कुपवारा जाते हुए तो वहाँ नज़र उस पर पड़ती है। आज हालांकि आजकल बंद है, लेकिन यहाँ पे भी हुआ करती थी। तो सफ़ेद संगे मरमर यानी सफ़ेद पत्थर, तो घरों में भी लगाया करते हैं वो सफ़ेद मार्बल वगैरह। तो यानी ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। ताजमहल सफ़ेद संगे मरमर के पत्थरों से बनाया गया है। तो ये इसके 4 सवाल थे। तो इन चारों सवालों का हमने जवाब लिखा। तो अब खाली जगहों की बात आती है, तो खाली जगहों को मैं किताब पे ही हल करूँगा। तो ये पहली खाली जगह इस तरह है कि डैश डैश दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो इसका जवाब है ताजमहल। दूसरा है, ये महल डैश डैश ने अपनी शरीक हयात की याद में बनाई। ये महल शाहजहां ने। तो ताजमहल का शुमार, तीसरा, ताजमहल का शुमार दुनिया के अजायबात, दुनिया के जो अजूबे हैं, यानी 7 अजूबे, तो उनमें शामिल है ताजमहल। तो डैश डैश ने ये महल अपनी मलिका डैश डैश के नाम पर बनवाया। तो शाहजहां ने ये महल यानी ताजमहल अपनी मलिका मुमताज़ महल के नाम पर बनवाया। मुमताज़ महल का असली नाम
ارجمند بانو تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب باری ہے جملے بنانے کی۔ سب سے پہلا ہے مزار، یعنی قبرستان وغیرہ، اسے مزار کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ رواج ہے، ہم مزاروں پہ جایا کرتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اور کسی کام کے لیے مزار پہ نہیں جانا چاہیے، سوائے جب اپنے وہاں کوئی والدین دفن ہو تو ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بھی جایا کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو پہلا ہے کہ ہمیں مزار پر فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ہے مشہور اقبال ایک مشہور شاعر ہے۔ آپ کوئی بھی جملہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ شوق، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہے نمبر 4 خوبصورت۔ میری ماں بہت خوبصورت ہے، یا وادی کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ مکمل، میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ اب آخری لفظ لطف۔ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کچھ جملے کالم اے میں دیے ہیں اور کچھ جملے کالم بے میں دیے ہیں، الف اور بے۔ تو ہمیں کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے جو جس کے ساتھ ملتے ہوں گے ان کے ساتھ ملانا ہے، یعنی جو صحیح جملے بنتے ہوں۔ تو تاج محل دنیا بھر میں ڈیش ڈیش، دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنے خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے، یعنی تاج محل دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اس میں کالم الف میں شاہ جہاں مغل بادشاہ ڈیش ڈیش، تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ جہاں مغل بادشاہ اکبر کا پوتا تھا۔ یہاں دیکھیں آپ۔ پھر ہے نمبر 3 کالم الف میں تاج محل سفید ڈیش ڈیش سے بنا ہوا ہے، تو اس کا سیدھا اپوزٹ ہے تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ تو تاج محل دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو اس کا آخری والا ہے۔ تو پھر رہا نمبر 5 تاج محل کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں آپ، یہاں میں تھوڑا روکتا ہوں اس کو۔ اب ہے نیچے دیے گئے الفاظ کو جوڑ کر نئے لفظ بنائیے۔ جیسے یہاں
इसने यहाँ पे दिया है मिसाल, आपने जैसे गुस्ल अलग लिखा है, फिर खाना। उमूमन आप ये पहली UKG LKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये काम किया करते थे, जब वहाँ जोड़ कर तोड़ कर लिखा करते थे। तो यहाँ ये दो लफ्ज़ों का एक लफ्ज़ बनाना है। असल में जब दो लफ्ज़ों का एक लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, क्योंकि अगर इनको अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग लफ्ज़ है। गुस्ल भी अलग लफ्ज़ है, खाना भी अलग लफ्ज़ है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। मुरक्कब लफ्ज़ मतलब जब दो लफ्ज़ों को जोड़ के एक लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे मुरक्कब लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। तो जैसे गुस्ल, गुस्ल का मतलब नहाना। फिर है खाना, वो जगह जहाँ पे ये गुस्ल किया जाता है तो गुस्ल खाना। शफा, शफा प्लस खाना तो शफा खाना बनेगा, यानी अस्पताल। मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला, खाना यानी वो ठिकाना जहाँ पे मुसाफिर सुकूनत इख्तियार करते हों, यहाँ मुसाफिर बैठते हों, तो जिससे हम सराय वगैरह कहते हैं, तो मुसाफिर खाना, मुसाफिर उनके बैठने के लिए जगह, मुसाफिर खाना। पागल तो जो दिमाग से जो जिसकी अकल काम न करती हो, वो बावरा हो जाता है। अल्लाह बचाए सबको, अपनी सेहत में रखे, अपने अमान में रखे। तो जहाँ पागल, जैसे हम वो कहते हैं ना, वो मेंटल हॉस्पिटल वगैरह जहाँ पे पागलों को रखा जाता है, तो पागल खाना। फिर से मैं यहाँ रुकता हूँ। शफा खाना, मुसाफिर खाना, पागल खाना। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ और अभी काम बाकी है। तो अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ अल्फाज ऊपर दिए गए हैं, इनको ही जोड़ना है इनके साथ। इन जगहों को, असल में ये इस लेसन के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं खाते, लेकिन फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ मिसाल इसने एक दी है कि मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, तो ये एक उन्होंने भर के दी है। तो हिंदुओं की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं, हिंदुओं की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं। ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं। बुद्धों की इबादत गाह को लोम्पा कहते हैं, और सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। फिर से मैं यहाँ थोड़ा इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप देखें गौर से। हिंदुओं ने मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, जो आप सब जानते हैं। हिंदुओं की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं। ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं। बुद्धों, जो बौद्ध एक एक मज़हब है, बुद्ध है ना, बुद्धिस्ट। तो बौद्धों की इबादत गाह को लोम्पा कहते हैं, और सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। गौर से देखें। अब थोड़ा सा एक और काम है जो आपको खुद करना है। मैं यहाँ में जो बच्चे, ये मुझे पहले उम्मीद है कि सब बच्चे देखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मैं फिर से ये आपको ये यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ, जो भी बच्चे देखते हैं वो बाकी बच्चों को भी वगैरह उनको मैसेज पहुँचाएँ, अगर आपके कांटेक्ट में हैं वो, कि वो भी वीडियो देखा करें, वो भी पढ़ा करें, फिर कापियाँ बनाया करें। तो यहाँ मैं एक काम आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों को ये काम करना है, तो फिर मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर। अपना नाम एक वगैरह उसके साथ, मुझे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे ने किया है, ताकि फीडबैक मुझे मालूम पड़े कि ताजमहल के अलावा शाहजहां ने और कौन कौन सी इमारत बनवाई। तो आपकी किताब में भी मौजूद है, आप कहीं और से भी मोबाइल के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से भी, या गूगल के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं कि शाहजहां बादशाह जो था, जो मुग़ल बादशाह था, तो उसका है उसने और कौन कौन सी, यानी ताजमहल के अलावा और कौन कौन सी इमारत बनवाई। तो आप उन इमारतों के नाम लिख के मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो ये था ये सबक नंबर 9। इसके एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। तो
ایک اور آپ کو بھی یہ بھی کام دیتا ہوں کہ آپ جو کاپیاں بناتے ہیں مجھے ان کاپیوں کے بھی فوٹو آپ واٹس ایپ کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.